Hello students, today's topic is work and heat. This is lecture number 4 from unit 1. Today's topic is work and heat, but before we start, we will discuss something about energy. So first of all, we should know that what is the energy. Energy is in a simple definition, energy is capability to do work. किसी भी काम को करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं. एनर्जी जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कभी भी हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते. दैट मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू another form. So classification of energy, basically the energy is classified as a low grade energy and high grade energy. This is the low grade energy and this is the high grade energy. As our topic is heat and work, heat comes under the low grade energy and work comes under the high grade energy. In a macroscopic view, the energy is kinetic energy and another energy is potential energy. In the microscopic approach, there are sensible energy, the latent energy, chemical energy and atomic energy. So all these energies, that is a sensible or latent or chemical or atomic, the summation of all these energies is called internal energy. So the internal energy is summation of U plus KE plus PE, where capital E is the internal energy, U is the stored energy, K is the kinetic energy, P is the potential energy, and the unit is kilojoule, where K stands for kilo and J stands for joule. So this is the internal energy. So the stored energy of any system which is U may be in the form of mechanical energy and internal energy. Sometimes it is in the form of chemical energy and sometimes it is in the form of electrical energy as well. In the case of non-flow process, the in the maximum cases there is no change in potential energy and kinetic energy changes. So we can neglect both the kinetic energy change and potential energy changes. But in the case of flow process, there may be a change in both, that is the potential energy and the kinetic energy changes. So we must have to take taken into account while considering the changes of stored energy. The heat and the work are the forms of energy in transition. So आगे हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे, बट उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी का जो फॉर्म है यहाँ पे, जैसे कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, उसके बाद है फिर थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फिर लास्ट में नीचे है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो ये एरो आपको इस कंडीशन में रखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, और जब यहाँ पे एरो को हम रिलीज़ कर देंगे तो यहाँ पे जो इस एरो में एनर्जी होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपको कहाँ पे चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है. जैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और या फिर केमिकल एनर्जी है वो आपका यहाँ पे stored energy के फॉर्म में है. Then what is the next is internal energy. So what is the internal energy? Energy contained within the system which is called internal energy. This type of energy or this energy includes the kinetic energy, the potential energy, chemical energy, and sometimes it also includes the gravitational energy, magnetic energy or other forms of energy. So total energy will be kinetic energy plus potential energy plus stored energy, और इसको हम इंटरनल एनर्जी भी बोलेंगे. जैसे कि नॉन फ्लो प्रोसेस के केस में क्या होता है कि किनेटिक एनर्जी चेंज इज 0, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज 0. सो बचेगा क्या फिर सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी. तो ई, कैपिटल ई इज इक्वल टू कैपिटल U. Next is kinetic energy. Kinetic energy means the energy which is possessed by a body by virtue of its motion. मतलब अगर वो किसी बॉडी में मोशन है या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है तो वहाँ पे उसको क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ mv². तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को v से डिनोट ना करके हम
सी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम को भी हम वी से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को भी वी से डिनोट करेंगे. सो देयर मे बी सम कन्फ्यूजन. सो वी टेकन सी एज द वेलोसिटी. So change in kinetic energy will be half m in bracket c2 minus c1. This c2 minus c1 is the velocity change, square Newton meter. Newton meter is the unit of energy. Okay, Newton meter. Newton meter को और क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं. Another is potential energy. The energy possessed by a body when a body is at rest condition. सो रेस्ट कंडीशन में अगर है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी एच, वेयर एम इज़ द मास, जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज़ द हाइट. यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पे जाएगा एम जी जेड. दैट इज़ द एलिवेशन फ्रॉम इट्स बेस और रेफरेंस लाइन. तो जेड को हम बोलते हैं एलिवेशन, या इसको सिंपल लैंग्वेज में हाइट भी बोल सकते हैं. अब इसके बाद आता है एनर्जी इंटरेक्शन इनटू क्लोज्ड सिस्टम. बट उसके पहले अगर एग्जांपल देखना चाहें तो देखते हैं कि ये जो टॉप है, इस टॉप पे इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 100%. जैसे ही यहाँ से ये नीचे डायरेक्शन में मूव किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. और उसी तरीके से जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी द मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी इंटरेक्शन इन अ क्लोज सिस्टम विच इज टेकन बाय टू वेज, बाय द वर्क ट्रांसफर एंड बाय द हीट ट्रांसफर. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी इंटरेक्शन. एंड ये प्रॉपर्टीज चेंज में भी आपका आता है. सो हीट वर्क को हम एनर्जी ट्रांसफर व्हीकल भी बोल सकते हैं. हीट एंड वर्क आर व्हीकल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ओके, अब इसका जो यूनिट होता है, ये यूनिट होता है हमारा जूल, और हम हमेशा एसआई यूनिट में रख के ही काम करेंगे. तो वर्क, हीट, एनर्जी, इन सब की यूनिट सेम होती है, विच इज़ द जूल, एंड जूल इज न्यूटन मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्क एंड हीट. सो वर्क और हीट में कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ हैं. देयर आर सम सिमिलैरिटीज, देयर आर सम डिफरेंसेस, but both work and heat are two most important concepts in the thermodynamics, which are highly interrelated but they are not quite the same. So in this further topic we are going to discuss about the definitions, the similarities and the differences between heat and work. So let's start with work. So work क्या होता है? Force into distance. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय ए फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस. दिस इज द बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. ओके, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकेंड कंडीशन. यहाँ हमने लगाया फोर्स. फोर्स लगाने से ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से इधर मूव हो गया. तो मूव हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा? डिस्टेंस कितना डिस्टेंस के साथ आया? मान लें कि ये स्मॉल डी डिस्टेंस के साथ आया. तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. बट इन द थर्मोडायनामिक्स वर्क इज रिफर्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट वर्क और द प्रेशर वर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेशर ऑफ गैस एक्टिंग ऑन द पिस्टन. ये तो अब यहाँ पे हम मानते हैं दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द पिस्टन, दिस इज द पिस्टन रॉड. ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन, इधर कहीं भी हो गया हमारा फाइनल कंडीशन. तो इस इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक अगर हमारा पिस्टन मूव कर रहा है तो कैसे मूव करेगा? यहाँ पे जो गैसेस रखी हुई है, इस गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन में क्या करेगा? कहीं ना कहीं प्रेशर लगाएगा. तो इस प्रेशर के कारण आपका जो पिस्टन है वो पिस्टन हमारा कहाँ मूव किया? इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव किया, जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? dx रखा हुआ है. तो यहाँ पे जो वर्क होगा दैट इज
द वर्क डन बाय द पिस्टन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, दिस इज़ आवर फाइनल कंडीशन। यहाँ पे है प्रेशर P1 और V1, इस कंडीशन में है P2 V2। अब यहाँ इसको कर्व में अगर हम प्लॉट करें तो कर्व में प्लॉट करते समय हम लेंगे प्लॉट की, दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा हमारा V। कोई भी कर्व यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं तो हमको मालूम है कि अगर हमको इस कर्व का एरिया अगर हमको निकालना पड़े तो एरिया निकालने के लिए जैसे हम स्कूल में क्या करते थे, छोटा सा स्ट्रिप लेते थे, उस स्ट्रिप का एरिया जो है वॉल्यूम हमने dV कंसिडर कर लिया और यहाँ स्ट्रिप कितना आ गया, P आ गया। तो स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, P इंटू dV। ठीक, अब अगर हमको टोटल अगर निकालना है तो टोटल निकालने क्या करेंगे, इनिशियल से लेके फाइनल तक का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से ये इसका क्या निकल कर आ जाएगा, एरिया निकल कर आ जाएगा। तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि एरिया इज इंटीग्रेशन 1 to 2 P इंटू dV। अब यहाँ देखते हैं कि आप आते हैं वापस पिस्टन पे, तो पिस्टन का जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए, जो dx डिस्टेंस के लिए अगर हम dw निकालें तो dw इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, देन अगेन प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। सो यहाँ पे जो वर्क डन है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, प्रेशर इनटू एरिया से। तो यहाँ पर आ गया आपका P इंटू ए, ठीक है, इंटू P इंटू ए इंटू डी जो है डिस्टेंस कितना है यहाँ पे लास्ट वाला डायग्राम में देख रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, P इंटू dV, एरिया इंटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम, यहाँ पे आ गया आपका dV। तो यहाँ पे आपको जो वर्क डन निकल कर आया, तो वर्क डन कितना निकल कर आया, इंटीग्रेशन 1 to 2 P इंटू dV। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तब इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 2 तक का। तो ये निकल कर आया। थोड़ी देर पहले हम देखे थे कि ये जो एरिया है इसका एरिया भी कितना निकल कर आया था, यही निकल कर आया था। तो यहाँ से क्या स्टेटमेंट निकल कर आएगा कि PV प्लॉट पे, मान लो हमारा कोई प्लॉट है वो PV प्लॉट पे है, उस कंडीशन में हम कोई भी कर्व ड्रॉ करें, उस कर्व का जो एरिया होगा, ये एरिया जो भी होगा वो उसके वर्क डन के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एरिया अंडर कर्व ऑन PV प्लॉट शोज द वर्क ट्रांसफर। ठीक है, then types of work interaction, there are many types of work transfer. So first one is electrical work, then shaft work, then paddle wheel work, then flow work. The next one is work done in a stretching a wire, and work done in a changing the area of a surface film. इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको PDF में मिल जाएगा, एंड बाकी चीज़ें मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। अब वर्क और हीट, वर्क के बाद अब आता है थर्मोडायनेमिक हीट। So energy transfer without a mass transfer between the system and the surrounding due to the difference in temperature difference is called heat transfer। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होगा आपका, जूल या फिर किलो जूल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेड है, मान लीजिए जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो ब्लू कलर है उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट का जो फ्लो होगा वो होगा आपका फ्रॉम द रेड बॉडी टू ब्लू बॉडी इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, then the heat will be from the body A to body B। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक हमारा ये बॉडी है, एक ये है बॉडी A, बॉडी B, इन दोनों को जब हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो यहाँ पे हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो डिपेंड करेगा इसका टेम्परेचर पे। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है T2, उसका टेम्परेचर T1 एंड T2, एंड रिलेशन इज T1 इज ग्रेटर देन T2, then the heat will be from the higher temperature body to lower temperature body. This is called हीट ट्रांसफ़र। अब आता है साइन कन्वेंशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएंगे, तो इसको थोड़ा समझना। मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र होगा और वर्क ट्रांसफ़र होगा।
तो यहाँ पर आपको देखना है कि हीट इनपुट अगर है, हीट इनपुट इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वर्क आउटपुट इज़ पॉजिटिव। तो हम पहले देखते हैं हीट के लिए, फिर उसके बाद देखेंगे वर्क के लिए, अलग अलग देखते हैं। तो फर्स्ट कंसीडर द हीट ट्रांसफर। तो अब यहाँ पे हम इसको आधा आधा कंसिडर करते हैं। जैसे हीट अगर यहाँ पे आपका इन में है, मतलब हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम है, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और हीट अगर बाहर निकल रहा है तो हम उसको लेंगे नेगेटिव। आपको इसी को याद रखना है कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई चीज़ आ रही है तो मेरे को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन होने की कंडीशन में हम वो लेंगे उसको पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ मुझसे बाहर जा रही है तो मेरा लॉस हो रहा है, तो लॉस को लेंगे हम नेगेटिव। जस्ट अपोजिट इसका वर्क डन होता है, यहाँ पे वर्क आउटपुट पॉजिटिव होता है, वर्क इनपुट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल लेना है तो आप अपनी गाड़ी से ले सकते हैं। आपकी जो भी गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी, आप क्या चाहेंगे उसमें मैक्सिमम हमको माइलेज मिले, मैक्सिमम वर्क मिले। तो हमारा जो डिसाइड है दैट इज़ द वर्क आउटपुट। सो वर्क आउटपुट इज़ पॉजिटिव एंड जस्ट अपोजिट वर्क आउटपुट इज़ नेगेटिव। इसमें एक चीज़ को ये ध्यान रखना है कि सिस्टम के बाद क्या होता है, सराउंडिंग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला कि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सराउंडिंग, हम उसको लेंगे क्या, पॉजिटिव। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग से कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कहाँ जाएगा, सिस्टम में जाएगा। तो सिस्टम में आ रहा है तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव। सेम उसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र टू द सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग अगर बोला तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ से हीट जो है वो बाहर निकल रही है। इसी तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव and on the system is negative, but work done on the surrounding is positive and work done by the surrounding is negative। दोनों में क्या होगा, उल्टा होगा, थोड़ा सा on और by, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। then work and heat transfer is a path function। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि अगर हमारा कोई भी एक ऐसा कर्व है, उस कर्व में प्लॉट में हम अगर कोई भी कर्व खींचें और कोऑर्डिनेट अगर पी है, तो इसके अंदर का जो वर्क डन होता है, इसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमारा क्या शो करता है, वर्क डन शो करता है। तो पी प्लॉट में एरिया वर्क डन शो करेगा। और नेक्स्ट तो अपन यूनिट में देखेंगे टी एस प्लॉट का जो एरिया होता है वो क्यू शो करेगा। मान लीजिए पी जगह यहाँ पे मैं आपका कर देता हूँ टी और वी की जगह का कर देता हूँ एस। तो ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व का जो भी एरिया होगा, ये एरिया आपका क्या शो करेगा, हीट ट्रांसफर शो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाथ फंक्शन कैसे हुआ, पाथ फंक्शन क्या होता है कि द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन पाथ। अब देखो, अगर यहाँ पे मेरा पीवी कोऑर्डिनेट है, पीवी कोऑर्डिनेट में मैंने 2 पॉइंट्स ले लिया, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, 3 अलग अलग पाथ, पाथ ए बी सी। अब इन तीनों का अगर मैं एरिया निकालूँ तो पहला एरिया मुझे इतना मिलेगा पाथ सी के लिए, पाथ बी के लिए थोड़ा ज़्यादा एरिया मिलेगा, पाथ ए के लिए मेरे को थोड़ा और ज़्यादा एरिया मिलेगा। तो यहाँ क्या मिला, एरिया फॉर द पाथ ए इज़ ग्रेटर देन एरिया फॉर द पाथ बी इज़ ग्रेटर देन एरिया फॉर द पाथ सी। तो जो कर्व होता है वो क्या शो करता है, वर्क शो करता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग अपन इसका वर्क डन का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन का रिलेशन निकालेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ से क्या निकला कि अगर 3 अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा है तो तीनों का वर्क डन अलग अलग होगा, तीनों का वर्क डन अलग अलग होगा, तो वर्क डन हमारा क्या है, पाथ फंक्शन। उसी तरीके से सिर्फ हमको प्लॉट अगर चेंज कर दें, पी वी जगह अगर टी प्लॉट कर देंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पी जगह हम यहाँ रख देते हैं टी और यहाँ रख देते हैं एस, तो उसी तरीके से हमारा हीट ट्रांसफ़र का भी निकल कर आता है। तो हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन दोनों क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट इज energy interaction due to the temperature difference and work is energy transfer other than the temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा अगर कोई रीज़न होगा
तो वहाँ पे हमारा वर्क ट्रांसफ़र होगा, और अगर टेम्परेचर के कारण है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, हीट जो होता है हमारा लो ग्रेड एनर्जी होता है और हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है. So this is another difference. The heat is a function of state because it depends on the state of a system, and the work is function of path. ठीक है, because it depends on the path taken by the system while changing the states. Efficiency of transfer of work or heat is higher, but efficiency of transfer of heat to work. Okay, so there are some similarities as well. तो similarities में आएगा both the heat and work are not the property of system, और both are the boundary phenomena. ठीक है, नेक्स्ट ये जो है ट्रांजिट क्वांटिटी है, और हीट एंड वर्क जो दोनों है वो एनर्जी फॉर्म होता है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है. ठीक है, और ये किसी भी सिस्टम के थ्रू उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते. फिर नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी. इज द हीट नीडेड टू रेज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी जो है इसका जो एग्जांपल है, जैसे बीच का अगर लें तो हीट कैपेसिटी ऑफ द बीच इज लोअर देन द वाटर, सो द बीच गेट्स हॉटर एंड कोल्डर फास्टर. Heat capacity is again Q is equal to C into dt, where C is the specific heat and dt is the change in temperature. Specific heat energy required to raise the temperature of 1 kg or 1 gram of substance by 1 degree centigrade. So Q is equal to mc into dt, where m is the mass, C is the specific heat, and delta is the change in temperature. The specific heat at constant pressure is denoted by Cv, and at the constant volume it is denoted by Cv. For air, the value of Cv is 1.005, Cv is 0.718. ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज आपको याद रखनी है. ठीक है, अब यहाँ पे जो है Cv, अब Cv क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Cv is du by dt. सेम द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर. तो Cp is dH by dt. The next is enthalpy. It is the summation of air energy and the pressure volume product. The change in enthalpy will be mCp T2 minus T1, where T1 is the initial temperature and T2 is final temperature. M is the mass, Cp is the specific heat at constant temperature. M is the mass, Cp is the specific heat and the temperature. अब अगर हमको del U का निकालना है तो del U के लिए आ जाएगा आपका इक्वेशन. इस del U इज U2 माइनस U1, U2 माइनस U1. इसका क्या करेंगे, आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे. Cv dt ये है, इसका इंटीग्रेशन कर दिए कहाँ 0.1 से लेके 2 तक. तो Cv क्या है, हमारा कांस्टेंट है, Cv एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और d2 का del t का क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1. सो du विल बी Cv T2 माइनस T1. और अगर dH के लिए हमको निकालना है, मीन्स एंथैल्पी चेंज का निकालना है, तो ये रहेगा Cp T2 माइनस T1. अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको फाइनल एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा. तो ये है, इतना जो टॉपिक था, दिस इज द समथिंग अबाउट वर्क एंड हीट ट्रांसफर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थैंक यू.